Welcome everyone, you're watching Sports Today. I'm Shivani Gupta. Also lined up a little bit later, a special report on how cricket is going the football way off field. For the very first time, official ICC merchandise to be available starting from this year's World T20. Indian Colts performed admirably in the recently concluded Under-19 World Cup in Bangladesh but failed at the last hurdle. I caught up with three of those future stars, Ishan Kishan, Rishabh Pant and Sarfaraz Khan. Take a look at what the trio had to say about India's campaign in Bangladesh and working with coach Rahul Dravid. It was heartbreak for the Under-19 Indian team in the World Cup final. But the boys made us proud and I'm sure Rahul Dravid feels the same, the coach of the Indian Under-19 team. I have with me not just the captain of the Under-19 team, Ishan Kishan, but also a wicket-keeper batsman like him, Rishabh Pant, Delhi's future star. And joining us from Bombay is Sarfaraz Khan, the second leading scorer of the tournament, of course, India's highest scorer. Ishan and Rishabh, you guys seem to be in good spirits. Even though you lost the final, are you guys satisfied with the way the team performed? Yeah, not satisfied with the batting unit, what we did in the field. But yes, the target was very low and the way we fought back in the match, it was really nice to watch the guys, how they gave their effort on the field. So it was really good for us to take the match till the last over. That's right, it was quite a good low-scoring final, and that's how low-scoring finals tend to go. What did Rahul Dravid tell you after the final? You know, it was our last match. It was our last match. We were wearing that Indian jersey and we were about to go to the field. He made us come in a huddle and he said, you guys just go, give your 100%. You know what your strength is, what you have done before matches. Just stick to the line, bowl hard, feel hard, give your 100%. That's it. The lines were very motivating to us and just we did the same there. फाइनल के बाद क्या बोला जब फाइनल का रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया? फाइनल के बाद ऐसा कुछ बोला नहीं राहुल सर ने, सबको यही बुला के बोला यू आर द चैंपियंस फॉर मी। तो सबको काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि सब लोग परेशान थे, फाइनल हार गया इंडिया, क्योंकि सबको होप थी कि इंडिया ही जीतेगा क्योंकि फेवरेट थे हम लोग ही। बट एक हार्ड डे, गंदा दिन, फाइनल हार गए। मैं आपसे राहुल द्रविड़ के बारे में और बात करूंगी, बट सरफराज से एक सवाल करना है। सरफराज, आपके लिए तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा इंडिविजुअली, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बताइए, आपके लिए हाई पॉइंट क्या रहा? नहीं, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट था मेरे लिए। मेरा फर्स्ट मैच से लेके आखिरी मैच तक ठीक परफॉर्मेंस हुआ, जिससे मुझे ये अच्छा लगा कि मेरी टीम को उसमें मतलब इनिशियल में हम लोग जीत रहे थे सब मैचेस, बट मुझे यही अच्छा नहीं लगा कि लास्ट मैच में हम लोग हार गए। बट हम लोग ने अपना बेस्ट दिया उस दिन, तो फिर भी हम लोग ने जीत नहीं पाए। राहुल द्रविड़ में एज अ कोच, एज अ प्लेयर उनकी क्या खासियत है ये तो हमको पता है ईशान, बट एज अ कोच अब आपने बहुत टाइम उनके साथ स्पेंड किया, इनफैक्ट उनके टेन्योर में ही आपको कोच, आपको कैप्टन बनाया गया है, तो उनकी खासियत एज अ कोच क्या है? उनकी खासियत ऐसा कोच ये है कि वो जब प्रेशर सिचुएशन होता था हम पे, तो वो अगर ड्रेसिंग रूम में आके हमसे शेयर करते थे कुछ भी, तो वो काफ़ी लगता था कि प्रेशर हम लोग से हट चुका है। तो उनका वर्ड्स जो भी था, लेजेंड बैट्समैन है, वो एक्सपीरियंस है उनको कि मैचेस में क्या होता है, प्लेयर्स पे वो जानते हैं कि अभी क्या जा रहा होगा। तो काफ़ी अच्छा लगता था उनसे इंडिविजुअली भी जाके बात कर लेना, अगर आप कुछ टेंस जो अपने बैटिंग या किसी भी चीज़ को लेके, तो उनसे काफ़ी कुछ ये सब सीखने को मिलता था। बट राहुल द्रविड़ के साथ कुछ हंसी मजाक भी करते थे या वो हमेशा सीरियस ही रहते थे जैसे कि लगते हैं ऑन फील्ड? वो नहीं, सीरियस हर समय नहीं रहते थे, ऑन द फील्ड थोड़ा सीरियस रहते थे, मगर वो बोलते थे एनवायरनमेंट ड्रेसिंग रूम का लाइट ही बना के रखना है। बट ऑफ द फील्ड सर अच्छे थे, हंसी मजाक भी करते थे हम लोगों से, तो अच्छा था एक्सपीरियंस तो राहुल सर का। बट इनिशियली थोड़ी सी हिचक होती थी उनसे बात करने में, खुल के बात करने में? शुरुआत में तो होती थी कि अब राहुल द्रविड़ सर है, कभी कभी हम लोग खुद सोचते थे कि हम लोग सही में हैं क्या उनके साथ। फिर बट धीरे धीरे करके जैसे हम लोग बूट कैंप हुआ, एक दूसरे से बॉन्डिंग अच्छा हुआ, एक दूसरे से कम्युनिकेशन हम लोग का बढ़ गया, उसके बाद से सर भी थोड़ा सा हंसी मजाक बीच में होता था हम लोग का, तो ये सब चीज़ काफ़ी अच्छा लगता था। हम लोग भी पे को क्लिक कर लेते थे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। बट सरफराज, आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा राहुल द्रविड़ के साथ, जो टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन रहे हैं, उनसे बैटिंग के लिए आपने बहुत टिप्स लिए होंगे, क्या क्या बातें की? नहीं, काफ़ी सारी चीज़ सीखने मिली उनसे, मतलब टेक्निक में भी काफ़ी सारी बात हुई
और जब प्रेशर में रहते हैं तो कैसा खेलना चाहिए, और इनिशियल में जाओ तो कैसा खेलना चाहिए, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ उनको उनसे सीखने मिली, और उनको देख के भी उनसे मैं से मतलब कैसे कूल और काम रहना चाहिए ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, सब कुछ चीज़ उनसे सीखने मिली हमको। ईशान, आपके लिए एज अ कैप्टन सबसे ज़्यादा प्रेशराइज्ड मोमेंट कौन सा था पूरे वर्ल्ड कप में? फाइनल में? फाइनल में था, जब पहले तो शुरुआत में जैसा एफर्ट दे रहे थे, मुझे लगा था कि हम लोग बहुत अच्छा जा रहे हैं, अगर ऐसे करते रहे तो फाइनल जीत जाएंगे। बट स्टिल जैसे जब पार्टनरशिप हुआ था उन दो बैट्समैन का, तो उस समय थोड़ा सा था, थोड़ा आपकी शक्ल पे दिख रहा था उस वक्त। हाँ, उसमें बस था कि पैनिक नहीं करना है, जैसा चल रहा है चलने देना है। तो थोड़ा सा उसमें टेंस था मैं कि वर्ल्ड कप फाइनल है, कोई भी कैप्टन रहता अगर इस सिचुएशन में, बस था उसमें जितना काम रह सकते हैं, तो अगर आप काम रहोगे तो डिसीजन आप अच्छा लेते हो। तो ये सब चीज़ सोच के थोड़ा सा हो रहा था। आप एक्चुअली बहुत काम दिख रहे थे, लेकिन सरफराज बहुत आपको वो बातें बोल रहा था, इजंट इट? ही इज वेरी एनिमेटेड ऑन द फील्ड, और ये हर ओवर के बाद फील्ड प्लेसमेंट्स और बॉलिंग, आपके बीच में बहुत डिस्कशन हो रहा था दोनों के बीच में। हाँ, ये पिछले साल भी वर्ल्ड कप खेला, तो इसे भी अच्छा एक्सपीरियंस है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी इसे नॉलेज भी है मैचेस के बारे में। तो हम लोग प्लान भी किए थे कि हम लोग बात करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि कैप्टन के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, और फिर दूसरे प्लेयर्स होते हैं जो अच्छा एक सजेशन दे सकते हैं जो मैच में हम लोग हेल्प करेगा। तो उस समय सरफराज का ऊपर से वो पिछले साल उन्होंने क्वार्टर फाइनल में तक गए थी उनकी टीम, तो इस साल था कि चलो वर्ल्ड कप जीत के दिलाएंगे हम लोग। हमने बोला भी था जिनका हम लोग फर्स्ट ईयर जो खेल रहे थे कि वर्ल्ड कप जीत के दिलाएंगे, बट स्टिल उसके लिए भी टेंस था कि उसका लास्ट ईयर है, वो चाहता था वर्ल्ड कप जीतना, तो ये होता ही है मैच में। तो सरफराज, ऐसा कभी होता था कि आपकी और ईशान की लड़ाई हो जाती थी, आप कुछ बोलते थे लेकिन ईशान नहीं मानते थे, या ईशान कुछ बोल रहे हैं और आप नहीं मानते थे? वो टाइम ही ऐसा था कि वो टाइम पे प्रेशर आता ही है, और एक वो अगर अकेले में ही अगर वो सोच के डिसीजन ले लेता तो उसमें और पता नहीं गड़बड़ा कि वो कुछ अलग नहीं करते, इसीलिए हम उसका भी दिमाग यूज़ कर रहे थे, और हम खुद का भी मैं अपना दिमाग यूज़ कर रहे थे, तो हम लोगों को बहुत इजी पड़ रहा था, और हम लोग एक दूसरे को अच्छे से मतलब जान रहे थे, वो जो मैं क्या सोचता हूँ वो क्या सोच रहा है, हम दोनों को यूनिटी अच्छा हो रहा था हम दोनों में। ऋषभ, वर्ल्ड कप के बाद सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है टीम को कलेक्टिवली, और या आपको पर्सनली? काफ़ी सारे सीनियर्स से भी आपकी शायद मुलाकात हुई हो, बात हुई हो, ऐसा कुछ रिस्पांस जो आपको बहुत अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जब हारे तो उसके बाद तो द्रविड़ सर का ही लगा था कि यू आर द चैंपियंस फॉर मी, तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो वही था हम सबके लिए। बट उसके बाद अभी किसी से इतना इंटरेक्ट करा नहीं है, वर्ल्ड कप के बाद सीधा घर ही आए हैं, तो अभी किसी से बात हुई नहीं है। बट आप दिल्ली के हैं, आसपास फैमिली में और जितने भी आपके लोकल सपोर्टर्स हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, उनसे कैसा रिस्पांस रहा है? उनसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, या अभी भी मिल रहा है, बट अभी सबसे मिल नहीं सकता, तो सबको सॉरी है, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो जब भी फ्री होऊंगा तो सबसे मिलूंगा जैसे टाइम मिलेगा, तो वही करना है। अच्छा, आगे की बात करते हैं। योर फ्यूचर होप्स, एस्पिरेशंस, गोल्स, ऑफ कोर्स IPL इज कमिंग अप फर्स्ट for all three of you, and I'll get to that and the crorepati's that you have become in the IPL, but you go first. काफ़ी अच्छा लग रहा है, करोड़पति अपनी जगह है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी अच्छा करा था टूर्नामेंट्स वगैरह में, सिर्फ वर्ल्ड कप में नहीं, इससे पहले भी 2 टूर हुए थे हमारे, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो हर चीज़ को देखते हुए हम IPL के लिए इतना सोच नहीं रहे थे ऑक्शन कब होगी क्या है, हमारा सारा फोकस वर्ल्ड कप पे ही था, तो वहीं अच्छा करने की सोच रहे थे। तो IPL तो खुद मिली है, तो जैसा भी होगा अच्छा करना है अब इसमें। ईशान, डिड यू एक्सपेक्ट सच बिग बक्स फॉर यू? ये एक्सपेक्ट तो नहीं था, क्योंकि बस था एक होप कि अब लोग थोड़े जान रहे हैं कि ये लड़का ठीक अच्छे छक्के मारता है, बस यही एक होप था, अच्छा करना था। क्योंकि ये सही बोला कि हमने वर्ल्ड कप के समय हम IPL पे ध्यान एकदम नहीं दे रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड कप सबसे पहले हमारे लिए वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था कि हमें वर्ल्ड कप जिताना है। द्रविड़ सर का इतना जो भी सपोर्ट स्टाफ थे वो लोग काफ़ी वर्कआउट किए हमारे पीछे, तो ये लोग को हर को एक चीज़ देना था जाते जाते। तो ऑक्शन की बात तो बाद में कि हुआ तो उतने मिल गए, बट अब वर्ल्ड कप ख़त्म हो गए, तो अब फोकस रहेगा IPL पे। जो 1 महीना मिला है हमें, तो इसमें हम कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं कि IPL में एक अच्छा शो छोड़ें, जिससे कि जो हमारे इंडियन टीम में आने का मौका मिले। हाँ, इंडियन टीम में आने का मौका मिले, फिर अगर परफॉर्मेंस जो अच्छी नहीं भी है वहाँ पे प्रूव कर सकूँ कि मेरा स्ट्रेंथ कितना था, मैं क्या क्या कर सकता था, तो ये सब चीज़ के लिए काफ़ी रहेगा। और सरफराज, आपको तो एक्सपीरियंस है, इनफैक्ट आप सबसे पहले स्टार IPL से ही बने थे, आपकी क्या होप्स है नेक्स्ट सीजन से? नहीं, मुझे अच्छा करना है, जैसे मैं अभी अच्छा करते हुए आ रहा हूँ,
मेरा 19 में ठीक ठाक सीज़न गया है अभी, तो आने वाले टाइम में 1 महीने का टाइम मिला है मुझे आरसीबी के लिए। तो मैं यही चाहूँगा जैसे मैंने लास्ट ईयर आरसीबी के लिए परफॉर्मेंस किया था, जितनी मेहनत करके मैं लास्ट ईयर गया था, वैसे सेम मेहनत करके जाऊँ और आरसीबी को मैं जिताऊँ। चलो फाइनली ये बताइए कि खेल की बातें तो बहुत हो गई, आप लोग यंग लड़के हैं, बांग्लादेश में जब साथ में होते हैं तो एंजॉय कैसे करते हैं? वेस्ट इंडीज के स्प्रिंगर ने तो चेस्ट रोल करके दिखाया, क्या आप लोग भी कुछ करते हैं ऐसे ही ऑन फील्ड ऑफ फील्ड? हमारा एंजॉयमेंट ऑन फील्ड दिखता नहीं है, उस समय लगता है काफ़ी शरीफ है, बट ऑफ द फील्ड पर आप शरीफ नहीं है। नहीं है शरीफ है, वैसे नहीं, ऑफ द फील्ड थोड़ा रहता है हमारा, क्योंकि अब इंडियन नेचर वैसा है नहीं कि आप फील्ड पे वैसा कर, वो वेस्ट इंडीज के लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर जीतते तो जरूर करते हैं ना? हाँ, जीते तो वो अपने आप हो जाता, हमें करना भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो वर्ल्ड कप का ट्रॉफी लाना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो इस बार तो दिखा नहीं पाए, बट होप जो भी अगले साल रहेंगे वर्ल्ड कप आईपीएल में कर दीजिएगा। हाँ, आईपीएल तो में एक कर अच्छा सकते हैं। स्टेज है। अच्छा स्टेज है, बट सबसे पहले वर्ल्ड कप की सोची थी, अगर जीतते तो हिस्ट्री बनती, तो हम लोगों के नाम भी आते उसमें। हाँ नहीं, पर ये बताइए आप अपने ऑफ टाइम पे क्या करना पसंद करते हैं ईशान? पहले तो बांग्लादेश में थे तो वहाँ पे लग रहा था कि हम जेल में ही हैं। कुछ वैसा करने को नहीं मिला, करने को था नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते थे, बहुत पुलिस था, कुछ नहीं कर सकते, बस रूम में बैठना था। बट वैसे क्या करते हैं ओवरऑल, आपकी हॉबीज वगैरह क्या है? हॉबीज थी, एक स्नूकर का टेबल था वहाँ पे, तो हम लोग स्नूकर में टाइम पास करते थे। टेबल टेनिस था नहीं जहाँ पे एक और जगह हम लोग टाइम पास कर सकते थे। यही सब गेम्स ही, अब स्पोर्ट्समैन है तो हमारा सब ध्यान गेम्स पे ही रहता है, कुछ ऐसा है नहीं कि नॉवल पढ़ रहे हैं बस गेम। पर एक चीज आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये लोग शरीफ दिखते जरूर होंगे लेकिन इतने शरीफ है नहीं। सो होपफुली वील सी देयर ट्रू कलर्स, सम अदर कलर्स व्हेन दीस गाइज प्ले मोर, एंड होपफुली यू विल गो ऑन टू प्ले फॉर इंडिया एज वेल। ईशान एंड ऋषभ, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। सरफराज, आप भी मुस्कुरा रहे हैं बॉम्बे में बैठे हुए, विश यू ऑल द बेस्ट एज वेल। Thank you. Thank you All very much. right, this ends our special chat with the under-19 stars, and of course, we only wish them all the best for the future. And Delhi Police Commissioner B.S. Bassi is presently at the Ministry of Home Affairs. He is meeting Rajiv Maharshi, the Union Home Secretary. From what we've been told, the current